SQL is categorized into 5 subcategory. First one is your DDL, DML, DQL, DCL and TCL. Okay. Now, before starting this, what SQL can exactly do? SQL can execute query inside the database. You can insert the data inside the database, delete the data inside the database, and update the record inside the database. So first one is your and create views inside the database. Different type of operations performed inside SQL. So first one is your जो कैटेगरी है उसमें क्या आता है, पहले DDL, दैट इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो व्हाट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? इसमें क्या क्या, इसमें सब कमांड्स होते हैं जिस कमांड्स को हमको फॉलो करना होता है व्हाइल वी आर एक्सेसिंग द डेटाबेस. फर्स्ट वन इज योर क्रिएट. क्रिएट में क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करना. जो भी डेटा हम लोग एक्सेस करके उसको क्या, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि इसको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है. सो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टेबल. आफ्टर दैट वी विल इंसर्ट और डिलीट व्हाटएवर द ऑपरेशन इनसाइड द टेबल, वी विल परफॉर्म दैट ऑपरेशन. सो फर्स्ट कंसेप्ट इज अ क्रिएट, मीन्स टेबल क्रिएट करेंगे. उसके बाद ड्रॉप मीन्स डिलीट द टेबल परमानेंटली. इफ यू वांट टू डिलीट द टेबल, सपोज आई हैव क्रिएटेड स्टूडेंट टेबल and I don't need that table, so I have to delete that entire table. So we can delete that table by using the drop function. Next is a truncate. Truncate means delete the data inside the table. After creating the table, we will insert the data, and if we don't want a particular data, then also we can delete the data by using truncate function. Next one is alter. We can alter performing the alter operation. Next one is rename. I can rename the table. Suppose I have created a table and I have given the name student table, and if I want to rename that table student 2 or student 3, then also I can rename that table. After DDL, ये सब कॉन्सेप्ट जब क्वेरी आप लिखोगे, जब टेबल क्रिएट करोगे SQL में, तब एक्चुअली प्रैक्टिकली ये आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. आई विल कवर दैट एवरी पोर्शन. नेक्स्ट वन इज योर DML. मीन्स इसमें क्या क्या आता है, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन. Insertion means after creating the table, our next step is obviously we will insert the data inside the table. So DML means data manipulation language. Means table create करने के बाद हम लोग data इसमें insert करेंगे, फिर update करना है. Suppose I have created an employee table, employee database I have created, then I will insert names of the employees. And update means suppose a new employee joins in a particular company, then I have to update the data. Delete. Suppose an employee left his job and joined in a different company, then accordingly I have to delete the data. So these operations perform under data manipulation language. Next is your DQL, that is a data query language. Means whatever may be the operation, end of the day हमको क्या करना है, क्वेरी ही लिखना है. तो क्वेरी लिखने में क्या होता है, DQL में डेटा क्वेरी लैंग्वेज. सेलेक्ट. सपोज पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमें सिलेक्ट करना है जो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है, तो हम लोग उसको ये सिलेक्ट ऑप्शन यूज करके हम उसके ऊपर क्वेरी लिखेंगे. नाउ DCL, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. मीन्स इसके अंदर दो फंक्शन आते हैं. फर्स्ट वन इज ग्रांट एंड अनदर वन इज रिवोक. Grant means permission to access database. You will give authority to a particular user to access your database. Okay. Now revoke that, taking back the permission for accessing the database. Means आप अगर यूज करते हो तो आप ही यूज कर रहे हो, चलो सही बात है. अगर कोई दूसरा भी पर्सन यूज कर रहा है तो आप उसको वो परमिशन ग्रांट करोगे. सो दैट इज कमिंग अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. लास्ट कंसेप्ट है TCL, दैट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. उसके अंदर क्या क्या कमांड्स आते हैं, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट. दीज आर ओवरऑल आइडिया लिटिल बिट आई हैव गिवन यू. डिटेल में आप जब क्वेरी लिखोगे, इसके ऊपर जब एक्चुअली टेबल क्रिएट करोगे, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करोगे, जब भी कुछ परफॉर्मेंस परफॉर्म करोगे, उसके अंदर जो भी कुछ ऑपरेशंस जो परफॉर्म करोगे, देन इट विल बी रियली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू. नाउ कंसेप्ट इज कीज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स. कीज मीन्स प्राइमरी की, फॉरेन की, जो भी कीज हम लोग यूज करते हैं. मैंने ऑलरेडी RDBMS में वो सब कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है. तो आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट टू एक्सेस द डेटा इनसाइड द टेबल और टू इंसर्ट द डेटा. उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो की और कॉन्स्ट्रेंट्स भी यूज होते हैं. की तो आप जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की जो टेबल में यूज किया होता है. उसके बाद टू क्रिएट द डेटाबेस एंड अप्लाइंग द रूल्स इन दोज डेटाबेस वी टेक द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स. कॉन्स्ट्रेंट्स का काम ये होता है कि हम लोग क्या क्रिएट करने के बाद डेटाबेस कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, सर्टन रूल्स, जो कि उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं. उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटर्स. सी ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सब एसक्यूएल के अंदर ही आते हैं. जब आप क्वेरी लिखते हो उसके टाइम ये सब आपको यूज करना होता है
टेबल में जो भी सब हम टेबुलर फॉर्मेट में जो भी डेटा होता है उसको रिगार्डिंग जब हम क्वेरी लिखते हैं तब उसको ये सब जरूरत होता है हमें। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो ऑपरेटर्स, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द बेसिक आइडियाज। ओके, now operators that like between, in, not in, condition, these are the operators we usually use for query making. Once you have created a table, inserted the data inside the table, now our next task is to fetch the data. How to fetch the data from that table? So for that we use the operators. By using these operators we fetch the data from the table. Next concept is the clauses. What are the clauses? That is a distinct, order by, from, having, select from, where, everything. These are the clauses. That is, we use it inside the query. During the query making, we use those clauses. Okay. Next one is an aggregate function. Mean, max, average, sum. These are the aggregation function. Like select the 10 students data from particular department. देन हमें क्या मिनिमम जो भी है 10 स्टूडेंट्स का डेटा हमें सिलेक्ट करना है, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर हमें डिस्प्ले करना है, उनका एवरेज निकालना है, तो इसके सब हम इस सब के लिए हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज जॉइन एंड नेस्टेड क्वेरी। आई कैन से दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट एंड स्टूडेंट्स यूजुअली गेट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड here only. Means join and nested query means for retrieving data by joining 2 or more tables. Suppose you have student table 1, student table 2, student table 3 और then ये सब टेबल को ज्वाइन करके जो कंबाइन करके आपको जो डेटा निकालना होता है ना, तब भी कुछ क्लॉजेस यूज करना होता है। तो दैट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस ओनली। सो फॉर रिट्राइविंग डेटा बाय जॉइनिंग 2 और मोर टेबल्स। अभी तक मैं जो भी बोल रही थी आपको सिंगल कैसे टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर इंसर्शन क्या है, डिलीशन क्या है, तो एसक्यूएल में जब मोर देन 1 टेबल होता है उसका भी डेटा रिट्राइव किया जा सकता है बाय यूजिंग जॉइन एंड नेस्टेड क्वेरी, और दिस इज सब क्वेरी इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है PL/SQL, दैट इज प्रोसीजरल है, वो उसमें आपको ट्रिगर्स होता है, फंक्शंस हम लोग बनाते हैं, कर्सर यूज करते हैं, प्रोसीजर कुछ यूज करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ PL/SQL। बट दीज आर द कंसेप्ट दैट इज कमिंग अंडर योर SQL, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Now I will say this is all about SQL. Okay, before closing this video, before ending this video, let me tell you another concept. Best example of practical life में अगर आप example देखोगे SQL का, तो best example है IRCTC। आपके जो IRCTC में क्या होता है, आपके जो डेटाबेस होता है वो particularly the best example of SQL only, क्योंकि वो तो हमारा API है, that is the application programming interface। IRCTC में आप जब भी लॉग इन करते हो आपका, तो आप देखना कि जो भी आपका ट्रेन का सपोज अराइविंग डिपार्चर, हमें पर्टिकुलर अगर हम लोग डेस्टिनेशन देते हैं, सोर्स जो भी स्टेशन देते हैं, जो ट्रेन का नाम हमें सब डिस्प्ले होता है दैट इज टेबुलर फॉर्मेट में। इफ यू विल नोटिस दैट सिस्टमैटिक फॉर्मेट में होता है। सपोज हमने डिपार्चर का, हमारा डेस्टिनेशन, सोर्स का हमने नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्वेरी लिखते हैं। जो भी हम लोग डेटा प्रोवाइड किए वो क्या DBMS उसको इंटरनली वो सिस्टम सब हैंडल करता है। अभी आप लोग सोर्स के नाम दे दिए, डेस्टिनेशन स्टेशन के नाम दे दिए, तो इसके अंदर क्या क्या ट्रेन है ये DBMS क्वेरीज इंटरनली लिख के वो आपको जो डिस्प्ले करता है, जो प्रोसेस डिस्प्ले करता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ SQL। आप अगर नोटिस करो कि वो डेटा भी सिस्टमैटिक है और टेबुलर फॉर्मेट में है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर SQL। आई कैन से दिस इज ऑल अबाउट SQL। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। Just follow my video and please subscribe my video. Thank you all.